Good morning to all my dear students. How are you all? I hope you all are well and your study is also going on well. As we are talking about the chapter 6, remaining part 4, class 8th. And now see the chapter 6, part 4, section 4 and piece number 75. As we were listening about the stories that the sneeze, how they make them sneeze and caught by a sneeze. Sneeze yani cheek. So now see, the promised obedience, Habas entered the corridor and taking off the shoes and went on tiptoe to the closest door at the guest advancing in the silent group at a little distance behind him. They promised, they had already promised they will follow their all instruction and obedience, follow the all instructions. The Herbert entered करते हैं and in the corridor and taking off his shoes and put off the shoes खोल देते हैं and went on the tiptoe यानी बिल्कुल अंगूठी पे चलना, tiptoe to the closest door. They reached towards the door by on the tiptoe and the guests advancing in the silent group at a little distance behind him. And the guests, as they were advised that in a silent group they will follow him very silently and peacefully, calmly at a little distance, and they will make distance from everyone and they will follow behind him. He next placed a stool and next he kept a stool in front of the door of the almirah, in front of the door, and by the standing upon it was tall enough, and they were standing on the stool upon it, and it was very tall to reach the top. The Herbert wanted to reach the top of that gate, and he then just as the noiselessly, and he do it all very peacefully and very slowly, noiselessly, and poured यानी भरना, and poured all the snuff from the box along the upper edge of the door. And the Herbert, he did it all very peacefully, very noiselessly, very slowly, and fill it all the snuff. Snuff is the tobacco, and from the box that was taken from the box, and he poured it all upper the edge of the door. एज ऑफ जो कि हल्का सा जो दरार रह जाती है, जो ऊपर स्पेस रह जाता है, जिसे हम कहीं थोड़ी सी दराज रह जाती है, उसके अंदर उसने वो पोर कर दिया, उसमें वो फिल करा. एंड विद ए फ्यू शॉर्ट पफ्स ऑफ द ब्रीथ, एंड हल्का सा उसने वहाँ उसे फूंक से अंदर डाल दिया. एंड blew the snuff through the chink into the interior of the closest, and this all snuff inside of the door. He held up his finger to the assembly and signaling them to be silent. He held up his finger. He put his finger on the mouth and signaling them to be silent. And he was showing the sign to be remain silent. वो उन्हें चुप रहने का इशारा कर रहा था. Dear me, what's that? Tell me what is that? Said the old lady. Old lady कहती है, after a minute or two had elapsed. एक दो मिनट के बाद, एक दो पल के बाद, a surprised sneeze had come from the inside the closest. Within 2 minutes, 1 in 2 minutes, a surprised sneeze. Surprised sneeze यानी that sneeze you want to control that, but it can't control. A sneeze that you try not to let out. वो छींक जिसे तुम नहीं बाहर आने देना चाहते थे. That suppress, वो उस छींक को रोकना चाहते थे. Just want to control the sneeze, but they couldn't. वो उसको कंट्रोल करना चाहते थे, but they couldn't. वो नहीं कर पाए. Had come from outside the closest. अचानक से एक छींक की आवाज़ आती है. Herbert held up his finger again. He again put his finger on the mouth and signaling to be remain silent. उन्हें फिर से चुप रहने का इशारा करता है. How very singular, whispered. Oh, ये क्या है, Sir Simon? This is most interesting. ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये चीख कहाँ से आ रही है? Herbert took advantage of the moment to gently slide the bolt of the closest door into the place. Herbert take the benefit of the moment. उसने इस पल का फ़ायदा उठाते हुए gently slide the bolt of the closest door into the place. उसने हल्का सा इसका बोल्ट खोला और थोड़ी सी इसमें स्पेस की. And said, और कहता है, more snuff, he said calmly. Slowly he said again, मुझे और स्नफ चाहिए, give me some more tobacco.
More enough, Sir Simon said. 2 or 3 gentlemen passed their boxes. 2-3 लोगों ने अपने boxes उन्हें पास किए, मतलब उन्हें ऑफर किया, उन्हें दिया. And the curtains were blown in at the top of the closest. Another sneeze, not quite too well suppressed at the first, was heard. Then another, which seemed to say that it would not be a surprise under any circumstances whatever. 2 and 3 people offered their snuff box to them, and the contents were blown in at the top of the clothes, and he took on more quantity the snuff and poured it in the closest door. उसने बहुत अच्छी मात्रा में वो स्नफ ली, तंबाकू लिया और उसने अच्छे से उसमें डाल दिया. Another sneeze, फिर एक छींक आती है, but not quite so well suppressed, but it is not a suppress, इसे कोई भी रोक नहीं पा रहा था. As the first, जैसे कि वो पहली वाली छींक की आवाज आई थी. Was heard, जैसे सुनी गई थी. Then another, next one, which seemed to say that it would not be suppressed under any circumstances. कि अब तो ऐसा लगता था, seemed to say, अब तो ये कहना होगा, it would not be suppressed, कि अब इन्हें रोका नहीं जा सकता अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, वॉट एवर, चाहे जो भी हो. एट लैंड देयर अक्रॉस ए परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ स्नीज, एंड विद इन फ्यू सेकेंड देयर वाज स्टॉर्म ऑफ द स्नीज. कुछ ही देर में जैसे वहाँ छींकों की तूफान आ गया था. इतनी सारी स्नीज वॉइसेस थी, इतनी सारा स्नीज कैन बी हर्ड, इतनी ज़्यादा छींकें सुनी जा सकती थी कि जैसे कोई परफेक्ट स्टॉर्म, जैसे कोई वहाँ छींकों का तूफान आ चुका था. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट फॉर वन ऑफ सो यंग, वेरी गुड यंग पर्सन, सेड सर साइमन. सर साइमन ने कहा, एक्सीलेंट फॉर एवरीथिंग, यंग पर्सन. आई एम मच इंटरेस्टेड इन द ट्रिक ऑफ थ्रोइंग द वॉइस कॉल्ड, आई बिलीव, वेंट्रोलकिज्म. तभी सर साइमन कहते हैं, आई एम मच इंटरेस्टेड इन दिस ट्रिक ऑफ थ्रोइंग द वॉइस. मुझे बहुत अच्छा लगा है, आई एम मच इंटरेस्टेड, मुझे अब बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि इस ट्रिक को जानने में. थ्रोइंग द वॉइस, उसने अपनी आवाज़, उसने अपनी बात को रखते हुए कहा, जो भी ये ट्रिक है मुझे बहुत पसंद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा. आई बिलीव, अब मुझे विश्वास हो गया. इट्स द एक्ट ऑफ यूजिंग योर वॉइसेज एज इफ समवन एज याज यूजुअली पपेट इज स्पीकिंग. ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे इशारे पर पिपेट डांस चल रहा है. मोर स्नफ, सैड हर्बर्ट. फिर हर्बर्ट ने कहा, मोर स्नफ, सर साइमन सैड, मोर स्नफ, सर साइमन मैन. सर साइमन्स मैन ब्रॉट अ लार्ज जार. तब साइमन मैन के, जो सर साइमन के पर्सन्स थे, उन्होंने उसे एक बड़ा जार दिया स्नफ्स का, तंबाकू का. हर्बर्ट वंस मोर चार्ज द अपर चिंक द स्मॉल स्पेस ऑफ द डोर्स, अपर चिंक ऑफ द क्लोजेस्ट, जहाँ से वो बंद था, उसने फिर वहाँ से और जो स्नफ थी और टबैको जो था वो उसने पोर किया, डाला. एंड ब्लू द स्नफ इनटू द इंटीरियर एज बिफोर, एंड ब्लू द स्नफ, एंड फिर उसने ही पोर द ऑल स्नफ एंड टबैको इनटू द इंटीरियर, उसने फिर अंदर वो डाला एज बिफोर, जैसा कि उसने पहले डाला हुआ था. A tumult of sneeze became really extraordinary to listen to. There was no sessions. The tumult of the sneeze, a loud voices of the sneeze become really extraordinary to listen. अब ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें the tumult, a loud voices, a loud sneezes become really, अब उन्हें बहुत ज़्यादा sneeze, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी. really extraordinary, जो कि बहुत ज़्यादा extraordinary थी, असाधारण थी सुनने में. there was no cessations, there was no end of the sneeze. अब वो sneeze को किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहे थे. it was like a wind, it was like a wind, जैसे it was like a wind, rain and sea battling in the hurricane. ऐसा लग रहा था कि आंधी, तूफान, बारिश, battling in a sea hurricane, ऐसा लग रहा था समुद्र में जैसे तूफान आ गया हो, हरिकेन, तूफान आ गया था, ज्वार आ गया था. ऐसा उन्हें लग रहा था कि अब तो बहुत ज़्यादा छींकों की बाढ़ आ चुकी है. I believe there are 3 men inside, and that is no trick at all, exclaimed Sir Simon, the truth flashing on him. अब सर साइमन एक्सक्लेम, तेज आवाज में कहते हैं, I believe there are 3 men inside, मुझे विश्वास हो गया है कि 3 आदमी हैं अंदर, and that it is not a trick at all, और आखिरकार ये कोई तमाशा नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है. The truth flashing on him, अब उन्हें सच्चाई नज़र आ रही थी. There are, हर्बर्ट ने कहा, बिल्कुल.
दे केम टू रॉब द हाउस, वो घर को लूटने आए थे. एंड दे आर द सेम हु स्टॉल माई हॉर्स, और यही वो लोग हैं, यही वो पर्सन हैं जिन्होंने मेरा घोड़ा चुराया है. द स्नीजेस चेंज इनटू द स्पैस्मोडिक ग्रोइंस. अब जो इनके छींके थी वो काफ़ी रुक सी गई थी. स्पैस्मोडिक वेरी इरेगुलर हो गई थी, कंट्रोल हो गई थी. एंड ग्रोन्स, लेकिन उनके रोने की आवाज़ें आई थी. वन ऑफ द थीव्स हियरिंग हर्बर्ट्स वॉइस क्राइड. उनमें से एक चोर जिसने हर्बर्ट की आवाज़ सुना था, जिसने हर्बर्ट की आवाज़ सुन ली थी, वो चिल्लाता है, वो तेज़ आवाज़ में कहता है, बिल्कुल ग्रांटिंग द मर्सी. ओ मर्सी मर्सी लेट अस आउट ऑफ दिस, प्लीज़ दया करें मर्सी, प्लीज़ दया करें हम पे. ही वॉज जस्ट बेगिंग द पिटीनेस, वो उनकी दया की भीख मांग रहा था. लेट अस आउट ऑफ दिस, हमें यहाँ से बाहर निकालो. वे इज़ माई हाउस सेड हर्बर्ट. हर्बर्ट ने कहा, वे इज़ माई हाउस, मेरा हाउस कहाँ है. टाइड टू द ट्री इन द हॉलो बिहाइंड, वो वहीं पेड़ से बंधा हुआ है. शॉर्ट्स गिबेट, जहाँ पे शॉर्ट्स गिबेट के वहाँ. मर्सी मर्सी लेट अस आउट और वी शैल डाई ऑफ सफोकेशन. प्लीज़ लेट अस आउट, हमें बाहर आने दो, अदरवाइज वी शैल डाई ऑफ सफोकेशन, हमारे यहाँ दम घुट के हम मर जाएंगे. ऑल द क्रिसमस गेट्स नाउ परसीव दिस वॉज नो लैंगर ए स्पोर्ट. सभी क्रिसमस गेस्ट ये समझ चुके थे, परसीव अंडरस्टैंड कर चुके थे, डैट वॉज नो लॉन्गर ए स्पोर्ट्स, ये कोई गेम नहीं चल रहा है, बट ए सीरियस अर्नेस्ट, इट्स ए सीरियस मैटर, ये बहुत गंभीर मुद्दा था. गन्स एंड स्टिक्स वर ऑब्टेन्ड, गन्स और स्टिक्स हाथ में ले लिए गए थे. ऑल द मैन सर्वेंट वर कॉल्ड इन द अरेंज्ड इन पोजिशन आउटसाइड द क्लोजेस, सभी मैन सर्वेंट्स को, मैन पावर को कॉल कर दिया गया था. एंड अरेंज दैम, उन्हें अरेंज कर दिया था अपनी पोजीशन पे. एंड आउटसाइड द क्लोजेस, उस गेट के बाहर. एट द सिग्नल, एक ही इशारे पर, हर्बर्ट विड्रो द बोल्ट, उनका बोल्ट खोलता. एंड स्टूड ऑन द डिफेंसिव, और अपने मतलब ओपन देयर गेट एंड स्टूड ऑन द डिफेंसिव, और अपने बचाव में खड़ा था. बट द थ्री रॉबर्स, लेकिन जो तीनों रॉबर्स थे, फार फ्रॉम अटैकिंग कंडीशन, दे वर फार फ्रॉम अटैकिंग देम, अब वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो उन पे अटैक कर पाते. वर फाउंड क्राउचिंग इन द कॉर्नर, दे जस्ट वर, they were suffocating inside and searching the space in the corner, gasping for the breath, सांस लेने के लिए वो जगह ढूंढ रहे थे. they were searching the place for breathing and they made no resistance, and after being tied up, उनमें किसी तरह की कोई प्रतिरक्षा या किसी भी तरह की उनमें कोई पावर नहीं बची थी. एंड आफ्टर बीइंग टाइड अप, और उसके बाद उन्हें बांध दिया गया. वर प्लेस्ड इन द आउट हाउस टिल द मॉर्निंग, आउट हाउस में उन्हें रखा गया सुबह तक. हर्बर्ट नाउ गेव द रिमाइंडर ऑफ हिज स्टोरी टू द असेंबल्ड कंपनी, हर्बर्ट ने अपनी सारी स्टोरी बताई उन्हें, उन लोगों को. एंड वॉज प्रोफ्यूसली थैंक, और उन्हें बहुत सा धन्यवाद दिया फॉर द सर्विसेज, उनकी सर्विस के लिए. एंड ही हैड रेंडर्ड, नाउ ही हैड provided, he provided a very thankful them. And Sir Simon pressed him to stay over the night and accept the use of the best bedroom the house afforded. Sir Simon ने उन्हें रिक्वेस्ट की, उन्हें प्रेस किया, उन्हें इंसिस्ट किया टू स्टे, रुकने के लिए, ओवर द नाइट, पूरी रात. एंड एक्सेप्ट द यूज़ ऑफ द बेस्ट बेडरूम, एंड सेट देम टू स्टे इन द बेस्ट बेडरूम इन द हाउस होल्ड ही ऑफर्ड. बट द हर्बर्ट डिक्लाइन, लेकिन हर्बर्ट ने डिनाई कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया. बीइंग एनेक्शियस टू फाइंड हिज हॉर्स जेरी, एंड ही वॉज वेरी क्रेजी. एनेक्शियस मैंने बहुत ज़्यादा इन ए हरी, वेरी क्रेजी टू फाइंड हिज हॉर्स, लेकिन उसे अपने घोड़े को ढूंढना था. सेवरल ऑफ द गेस्ट accompanied Herbert to spot mentioned by the thieves as where Jerry was hidden. Jerry is the horse of Herbert. एंड सेवरल ऑफ द गेस्ट, बहुत सारे गेस्ट अकम्पेंड, उसके संग आए, हर्बर्ट के संग, टू द स्पॉट, उस जगह पर, विच इज़ मैंशन बाय द थीव्स, जो कि थीव्स ने बताई थी, एज वे द जेरी वॉज हिडन, जहाँ जेरी को छिपाया गया था. व्हेन दे रीच द नॉल, जब वो उस जगह पर पहुँचते हैं, नॉल अ वेरी स्मॉल प्लेस राउंड हिल, एंड लुकड ओवर, वहाँ जाके देखते हैं. दे फाउंड द हॉर्स, तो उन्हें वहाँ पे हॉर्स मिल जाता है. अनइंजर्ड एंड क्वाइट unconcerned. The horse was in a good condition, not bad. Uninjured, वो घायल नहीं था. And quite unconcerned, और वो कहीं किसी भी
प्रॉब्लम में नहीं था. At the sight of the Herbert Knight joyfully, and nothing could exceed Herbert's gladness at finding him. At the sight of the Herbert, when the horse saw the Herbert there, when the sight of the Herbert, Herbert के देखते ही नाइट यानी घोड़ा हिन हिनाता है. हिन हिनाना अपने जो घोड़े की वॉइस होती है, जो इसमें से घोड़ा अपनी बॉडी लैंग्वेज देता है. हिनाइट द जैरी नाइट जॉयफुली, खुशी से, एंड नथिंग कुड एक्सीड, और इससे ज़्यादा खुशी का पल नहीं हो सकता था. हर्बर्ट्स ग्लैडनेस एट फाइंडिंग हिम, उसको पाकर हर्बर्ट बहुत हैप्पी था, बहुत एक्सट्रीमली खुश था. ग्लैडनेस, ही माउंटेंट एंड विश्ड हिज फ्रेंड, वो खुले दिल से शुक्रिया अदा करता है अपने दोस्तों का. गुड नाइट्स फ्रेंड्स एंड गुड नाइट, उन्हें गुड नाइट विश करता है. एंड cantered off in the direction they pointed out as nearest way, or ride a horse, ride his on jerry's, and at a good speed in the direction, और उस घोड़े पर बैठकर उस डायरेक्शन में जिन्होंने जो उसके गेस्ट बताते हैं पॉइंटेड आउट, जो उसे बताया गया था हिज नियरेस्ट वे, उसके पास के रास्ते पर उन्होंने उसे उस शॉर्ट वे बताया था, वो अब घोड़े पे बैठ के वहाँ चला जाता है. एंड रीचिंग होम, घर पहुँचता है सेफली, बिल्कुल सुरक्षित. अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बजे वो अपने घर पहुँचता है. दिस वॉज द हर्बर्ट्स स्टोरी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.